Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. This is a special video on the Kurukshetra monthly compilation, and I'll be discussing the compilation for the month of January 2021. So as you know, Kurukshetra is also one of the important document when it comes to civil services mains and prelims examination. So let's see what is this edition all about in the January. So this edition talk about the perspectives of the rural development, whatever development that has occurred and what need to be done from the government side and what is the achievement in the rural development sectors. So this is the entire the issues having the theme of the rural development. So we'll see each article so that have a comprehensive analysis of the topic, and at the same time we'll discuss the relevant point from the prelims examination as well. Now the first article, that is holistic approach towards the rural development, किस तरह की अप्रोचेस होनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, विल सी दैट. सो अगर बात करें इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड की, सो इट हैज़ ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 35, एंड इंडिया इज ऑल्सो नोन ग्लोबली फॉर इट्स रैपिड ग्रोइंग डिजिटल पावर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ और जो इनोवेशन स्पिरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंडिया में. एंड एट द सेम टाइम वी हैव द एज ग्रुप, एवरेज एज ग्रुप जो है वो 35 ईयर्स की है. Now, over 70% of the formal and informal labor workforce in India is associated with micro, small and medium enterprises in rural India. So, बात करें अगर MSME की या फिर इस तरह के जो prospects हैं, तो जो 70% workforce है वो formal और informal sector में काम करते हैं. Now, delivering quality education की अगर बात की जाए, the government has come up with the new education policy 2020 and its vision to strive and make a realistic importance of the experimental learning, जहाँ पे emphasis दी जाएगी with developing the relevant skill sets, और कुछ ऐसे innovative steps गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं that includes Atal Tinkering Labs, ATL के नाम से भी जाना जाता है. This was launched by Atal Innovation Mission of नीति आयोग, right? So if you've been asked in the examination, Atal Innovation के बारे में आप जरूर देख ले prelims examination point of view से, and this was being launched by नीति आयोग. So other tinkering labs की अगर बात करें, these are state of the art that was created in the school where children are introduced to new emerging technology and the toolkit, right? Now developing youth as challenge maker, किस तरह से youth को जो आने वाले सिचुएशन में जो challenges हैं उनके लिए डेवलप करना. So the focus of the decade would be in achieving the sustainable development goal 2030, and this can be achieved by enabling youth of the country to be in the front center of the solution of being created. ऐसे भी अगर आपने इंडिया की यूथ पॉपुलेशन की आपने देखा होगा तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी पोटेंशियल वो ये है कि हमारी यूथ पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, और इसको सस्टेनेबल तरीके से आगे जो हमारी SDG की गोल है उसमें लगाना, उसमें इनेबल करना, दैट वुड बी द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट. दैट शुड बी द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट, एंड अ सिमिलर एफर्ट हैज़ टू बी कैरिड आउट जहाँ पे रूरल कम्युनिटी यूथ फेलोशिप प्रोग्राम्स है उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है. जो यंग इनोवेटर्स हैं या फिर इंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है. एंड एट द सेम टाइम दे शुड बी कैटरिंग टू द वाइबल सॉल्यूशन टू द लोकल सेस डेवलपमेंट चैलेंजेस. नाउ प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, दे मे ड्राइव फेलोशिप बाय प्रोवाइडिंग फेलोशिप्स थ्रू एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस. तो ये कुछ यूथ एज अ चेंज मेकर, दे कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ चेंज मेकर. और यूथ के बारे में खास करके अगर ऐसे पेपर की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है कि यूथ को कनेक्ट कर पाएंगे आप ऐसे पेपर में भी. Now, digital push and transforming the agrarian economy, अगर स्टार्टअप की बात की जाए, दिस कैन प्रोवाइड फार्मर विद क्वालिटी सीड्स. खास करके जो नए स्टार्टअप्स हैं डिजिटल इकोनॉमी की अगर बात करें या फिर डिजिटल पुश की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो क्वालिटी सीड्स, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इरीगेशंस, प्रिसाइज एग्रीकल जो मैकेनिज्म्स हैं उसकी तरफ, वाटर कंजर्वेशन इज अगेन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट, डिमांड ऑफ फोरकास्ट बेस्ड मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड प्री हार्वेस्टिंग फेज. और जो स्टार्टअप हैं दे कैन प्रोवाइड फार्मर्स अ डायरेक्ट मार्केट जहाँ पे दे कैन लिंक बिकम बायर एंड द फार्म प्रोड्यूस. तो अभी खास करके जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं दे आर वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. खास करके कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं दैट आर बीइंग ग्रोन टू इंश्योर कि जो फार्मर की इनकम है वो डबल नहीं तो कम से कम वो प्रॉफिट मेकिंग में आ सकें. Now, the other topic that is there in this month edition talks about the Swachh Bharat Mission Phase 2. So the Swachh Bharat Mission, this is for the Gramin, is the first phase devoted to making India open defecation free. ODF की तरफ फ्री करने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव ली है गवर्नमेंट ने.
In February 2020, they have approached phase 2 with the Swachh Bharat Mission Gramin to focus on solid and liquid waste management. दोनों तरह की waste management जो है solid और liquid उनके लिए and sustainability of the ODF status. Now at about the same timing जहाँ पे 15th Finance Commission ने रिपोर्ट दी थी, उसकी रिपोर्ट में भी रिलीज की गई और ये कहती है वो रिपोर्ट, इट प्रोवाइडेड मच नीडेड टायर्ड ग्रांट टू सैनिटेशन एंड रूरल लोकल बॉडीज. तो लोकल बॉडीज में भी फंडिंग या फिर उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे 15th Finance Commission है उन्होंने भी रिकमेंडेशंस दिया हुआ है. सो दिस पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट. Now, the Department of Drinking Water and Sanitation is implementing this on mission mode that is up to 2025. So, the deadline has been provided to cater the problem of open defecation both in the solid and waste management. Now, objective of SBM phase 2 की अगर बात करें तो ODF plus village बनाने की बात की गई है. And this is the status to ensure solid waste and liquid waste management. And to declare a village ODF plus following the checklist is provided in the guideline. Pehla, a household have access to functional toilet facility. They should have a basic amenities with regards to the toilets. All Angan, school wadis, panchayat girls have access to functional toilet, separate toilet for male and female. ये कुछ criteria हैं, कुछ objectives हैं SBM phase 2 के. Now, public places to be visually clean, ऐसी सफाई होनी चाहिए कि जो visible हो. And about 80% of the household of all public institutions have arranged for more managing biodegradable and solid liquid waste. Now, the village have plastic segregations and collecting system. तो एक proper collecting system हो जहाँ पे हर चीज़ें channelize हो. The citizens should not have any problem in ensuring कि जहाँ पे plastic segregations हो या collection system हो वो इतने appropriate हो कि आराम से उसका आदमी इस्तेमाल कर सके. Now coming to the guiding principle of implementing SBM phase 2, किस तरह से उसमें क्या क्या गाइडलाइन दिए गए हैं. So the phase 2 mission is complex and challenging. Therefore, few guideline and principle has been laid out. First is that promotion of reduce and reuse of recycle generation of the waste at source. खास करके वाटर की अगर बात करें, वाटर की reusability को बढ़ाने की बात की गई है. Operational and maintenance of obligatory components of planning. Encouragement of technology with low operation and maintaining cost, clustering of village for maximum economic efficiency, creating self-sustainable revenue models और प्रायोरिटी करना कि villages में किस तरह से खास करके on the banks of Ganga should have given the priority. So this is all about the guiding principle for implementing of the SBM phase 2. Now, कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक स्टेट्स हैं स्टेक होल्डर में, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल दैट शुड रिक्वायर टू बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट मॉनिटर ऑफ ODF प्लस एक्टिविटीज़. और जो स्टेक होल्डर्स हैं दैट इंक्लूड विलेज वाटर सैनिटेशन, कमिटमेंट टू वाटर ब्लॉक सैनिटेशन कमिटी, डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन, एग्रीगेशन, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो आशा वर्कर हैं या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इन सारे लोगों को, इन सारे स्टेक होल्डर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो PRI इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इंक्लूड किया गया था 11th शेड्यूल में. सो देयर रोल इन द ग्राम पंचायत इज पाइवोटल, इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और इम्प्लीमेंटिंग SBM ग्रामीण वुड बी देयर टास्क एंड विदाउट देयर कॉपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. Now, each gram panchayat is expected to develop a village स्वच्छता plan for each financial year, right? तो हर financial year में उनको एक plan बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. Now, rural healthcare in India, how the healthcare sector is performing and what are the things that has to be done to improve the rural healthcare infrastructure and overall amenities. So, despite the year of reform and efforts, 1983 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाया था. वहाँ पे there were efforts to expand the western healthcare services that are benefited to upper class people and who fail to serve the urban, poor and rural India. और अगर पॉलिसी रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन हेल्थ केयर की बात की गई है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. वी हैव सीन इन दिल्ली लाइक मोहल्ला क्लिनिक है या फिर और भी किसी छोटे शहर में आप देख सकते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से. अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जानी चाहिए एंड द प्राइवेट सेक्टर शुड बी गिवन अ पार्टिसिपेशन. एज यू नो हॉस्पिटल में खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेस इतना ज़्यादा हैं कि लोग कंसल्ट भी नहीं कर पाते, अपनी इलाज तो काफ़ी दूर की बात है. Now, National Rural Health Mission, this was launched in 2005 after a careful deliberation through thought.
और जो हेल्थ केयर है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो कि जो हेल्थ है वो अपने हमारे जो लिस्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट होती है, राइट. तो इसमें ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है. दिस इज एक्चुअली यूनियन लिस्ट, आप यूनियन लिस्ट भी बोल सकते हैं. स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं. इसमें हेल्थ केयर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, राइट. So the principal way to provide that adequate flexibility financing allows की जाए हेल्थ इंटरवेंशंस हो सर्विसेज में रूरल इंडिया, जहाँ पे कॉमन एक डेफिनेट गोल को अचीव किया जा सके, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. नाउ कवरेज एंड एक्सेस टू रूरल हेल्थ केयर. जो रूरल हेल्थ केयर है वहाँ पे 3 टायर सिस्टम बनाए गए हैं. द फर्स्ट इज द सिस्टम ऑफ सब सेंटर्स, फिर दूसरी है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और तीसरी है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, राइट. तो अगर इस तरह से चीज़ें इंटीग्रेटेड होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, तो जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे उनको भी टाइम मिलेगा कि एक चंक ऑफ पॉपुलेशन को आराम से वो कैटर कर सके, क्योंकि किसी एक लेवल पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगी. और जो CHC है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, दे आर स्पेशलाइज्ड थ्रू सर्जन्स, ऑप्टेशियन, गाइकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस एंड पीडियाट्रिशियंस. नाउ कवरेज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन विद एडिक्वेट हेल्थ केयर सेंटर्स वाज इम्प्रूव्ड, और यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया. नाउ एक्सेस टू केयर एजेंट्स विद बिग चैलेंजेस वो द एड्रेस टू द NRHM, जो हमारी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसमें एजेंट्स को खास करके इस तरह के प्रॉब्लम्स जो आए हैं, बड़े चैलेंजेस जो हुए हैं तीनों सेक्टर में, चाहे वो सब सेंटर्स की बात की जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बात की जाए, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में बात की जाए, उन सारी चीज़ों को कैटर भी किया गया है. नाउ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स की अगर बात करें, ये एक ऐसे वर्कर हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं. दे आर द फर्स्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है. विलेजेस में इनकी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होती है. और सक्सेस ऑफ द सेवरल प्रोग्राम ऑफ NRHM, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आशा वर्कर के नेटवर्किंग पे काम करती है. जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी नेटवर्किंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सक्सेसफुल होगी. सो इफ यू आर राइटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन, डू राइट दिस पॉइंट. Now, ASA worker are liaising between the local rural community और जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बीच में इस ब्रिज का काम करते हैं, राइट. सो दिस लाइजनिंग इज ऑन पॉजिटिव नोट, दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रिज. Now they share information on the basis of health, hygiene, practice, council of movement, childbirth, issues related to Act Point, and the basic health kits, right. So these are about the accredited social healthcare activist. Now some program for rural health care, जैसे जननी सुरक्षा योजना, यहाँ पे कैश इंसेंटिव दी जाती है वुमेन्स को, और जो पूरी ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द नियोनेटल एंड मैटरनल मोर्टेलिटी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, स्पेशली फॉर दोज इन द रूरल इंडिया. नाउ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, so this was launched in 2011 and the aim is to provide out of pocket expenditure, क्योंकि out of pocket expenditure इंडिया में हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा है. तो ड्यूरिंग प्रेग्नेंट टाइम जो वुमेन्स होंगी उनको और उनके बच्चे के लिए उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को किस तरह से ख़त्म किया जाए. और गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग फ्री ड्रग्स, कंज्यूमेबल, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड, फ्री डाइट for 3 days during the normal delivery and 7-day cesarean delivery के लिए, right. So this is an initiative that also cover antenatal and postnatal emergencies. Now प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ अभियान, अगर बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ अभियान की, this was launched in 2016 and it provide natal cares free of cost. यूजुअली जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो मैंने आपको बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर्स में होंगे, they can avail this government facilities. ना स्पेशल न्यू केयर यूनिट बॉर्न्स के लिए, जो न्यू बॉर्न्स हैं उनके लिए स्पेशल केयर यूनिट होंगे. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल विथ मोर देन 3000 प्रोवाइडेड केयर फॉर द न्यू बॉर्न्स. और अगर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें, सो दिस इज टारगेटिंग द एडोलेसेंस, जो कि एज ग्रुप फ्रॉम 10 to 19 की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको टारगेट करती है. एंड द एम इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंडीशन, मेंटल हेल्थ, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंट इंजरीज एंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सके, सो दैट वी कुड हैव अ गुड हेल्थ केयर सर्विसेज इन द एरिया और इन द लोकेलिटी, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर. नाउ टीका एक्सप्रेस, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के लेकर के बात की गई है. टीका एक्सप्रेस इज समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग द इम्यूनाइजेशन पैन इंडिया. यहाँ पे सेफ ऑपरेशन, कोल्ड चेन्स, रिस्टोरिंग वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, और अनीमिया मुक्त भारत. So this is targeting especially again the adolescents, boys and girls, for women reproductive age, pregnant and lactating mothers.
राइट। और ये यहाँ पे बिहेवियर चेंज, कम्युनिटी कैंपेन, मैंडेटरी प्रोविजंस है फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स को लेकर के, पब्लिक हेल्थ, एड्रेसिंग द नॉन न्यूट्रिशनल काउजेस दैट काउज एनीमिया। तो अनीमिया इज अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन फॉर द नॉन डेवलपमेंट्स ऑफ द बॉडी, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर एनेमिक हो वुमेन्स। ज़्यादातर ये वुमेन्स में, लेडीज़ में, एडोलेसेंस गर्ल्स में देखा जाता है। फीमेल्स में जो आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की पूरी एब्जॉर्प्शंस नहीं हो पाती है। मैं आपको बायोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं बताना चाहता हूँ। सो दिस इज द रीजन दैट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अनीमिया मुक्त भारत, राइट। नाउ एजुकेशन इन रूरल इंडिया स्कीम फॉर वुमेन एंड यूथ. So, for education for children and skilling the training adults is ultimately one way for the rural India to escape the poverty trap and finding themselves and to make a self-reliant. Education की अगर बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 हैड बी वेरी सक्सेसफुल. गवर्नमेंट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको भी लेकर के आई है. जो 2009 में राइट टू एक्ट थी, वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो एनरोलमेंट रेशियो उसको बढ़ाया जाए. एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 2015-16 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ऑल्सो नोन एज GER, दैट वाज 56.2% इन द सीनियर सेकेंडरी लेवल as compared to 99.92% at the primary level, right? So these are some of the achievements. Now initiatives क्या क्या ली गई है? समग्र शिक्षा स्कीम, दिस इज an important scheme launched in 2018-19. यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो प्री स्कूल्स हैं, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं, उनमें ये पूरी जो स्कीम है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, तो इस तरह की स्कीम्स में जो प्रेफरेंस दी गई है वो स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स को, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स को, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के रीजन में आते हैं, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे फोकस करने की बात की गई है फॉर क्वालिटी एजुकेशन. एंड द स्कीम प्रोवाइड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल, gap determining the unified district information systems and proposal for repaving the respective districts और union जो UTs हैं वहाँ पे. जवाहर नवोदय विद्यालय, this was again there for providing a good educations, modern educations. So again awareness for the environment और फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया बच्चों के, ताकि रूरल एरियाज में जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं बच्चों को, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके. एकलव्य मॉडल फॉर रेजिडेंशियल स्कूल, दिस वाज अगेन लॉन्च्ड इन 1997. यहाँ पे अगेन द प्राइमरी एजुकेशन जो है, अपर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ST स्टूडेंट, जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं, उनको रिमोट एरिया में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए एजुकेशन पे, जहाँ पे वो जनरल पॉपुलेशन से कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स दे कैन बी मोर कैपेबल टू कैटर द प्रॉब्लम एंड गिव द रिजोल्यूशन आउट ऑफ इट. मिड डे मील्स की नो, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे क्लास 8 तक के बच्चों को ज़रूरत की जो मील्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर द ट्राइबल पीपल, दलित, गर्ल्स चाइल्ड एंड लेबर वर्क्स फॉर दे आर गोइंग टू स्कूल, राइट. सो यहाँ पे स्कूल्स में किस तरह से इन्वायरमेंट बढ़ाई जा सके, एंड दे आर प्रोवाइडेड फूड इन द स्कूल इटसेल्फ. अभी कोविड के टाइम में दे वर प्रोवाइडेड विद द ड्राई राशंस. टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स अंडर समग्र शिक्षा, various targeted intervention for the girls including educationally backward blocks also. Now कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अगर बात करें इस तरह की स्कीम्स की, तो यहाँ पे एजुकेशनल बैकवर्ड जो ब्लॉक्स थे, उनमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को, जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBCs हो, या बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हों, उन सारे लोगों को स्कूल्स में रेजिडेंशियल स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती थी विद लॉजिंग एंड फूडिंग. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिस इज अगेन अ स्कीम वर्किंग फॉर डेवलपिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड, एंड इट एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू डिक्लाइनिंग जो चाइल्ड सेल्स रेशियो है, उसको किस तरह से एक लेवल किया जाए. एंड इट्स एम टू हैव द माइंडसेट ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन मेक अप्रिशिएट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट. सो दिस हैज़ टू ऑल्सो इंश्योर कि जो गर्ल्स और चाइल्ड्स की, खास करके मेल और जो फीमेल की जो पॉपुलेशन रेशियो है, उसको इक्विवेलेंट किया जा सके, राइट. Now empowering women for the empowering the rural women, किस तरह से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको empower किया जा सके. So this is in light of that context. So महिला सशक्ति केंद्र स्कीम, the government approved in November 2017
और ये जो स्कीम थी, दिस वाज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. दिस एम्पावर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे बहुत हद तक बढ़ावा दिया गया. द स्कीम एम्स टू फैसिलिटेट द इंटर सेक्रेटोरियल कन्वर्जेंस स्कीम एंड प्रोग्राम मेंट फॉर बोथ वुमेन एंड सेंट्रल, स्टेट एंड यूटीज लेवल. कुछ अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे पढ़ना लिखना अभियान. सो दिस हैज़ बिन रोल्ड आउट टू रिप्लेस द साक्षर भारत स्कीम, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी. नाउ द लिटरेसी डे की अगर बात करें, सो दिस हैज़ बिन फोकसिंग ऑन अचीविंग लिटरेसी ऑफ 100% बाय 2030. And under this scheme, the massive literacy project would be launched for the tribal area, forest area जो prisoners हैं, slums हैं, even the technology facilitators जो हैं, they should be facilitated under पढ़ना लिखना अभियान. And it will focus on the basic literacy components in the 4 months among the adults. For examples, government think Niti Aayog under the 112 aspirational districts, right? So this is something that would be taken care of under the पढ़ना लिखना अभियान. ना स्किल ट्रेनिंग इन हायर एजुकेशंस, अगर नेशनल एजुकेशंस की बात की जाए 2020, सो द स्कूल करिकुलम एंड पेडोलॉजी एम्स टू गिव एन होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय लर्नर्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर 21st century री एजुकेशन एंड करिकुलम इनहेंसिंग. अगर पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस की बात करें, सो इट हैव एन इंटीग्रेशन बिटवीन द वोकेशनल ट्रेनिंग और जितने भी स्कूल्स और हायर एजुकेशन में जो फेज्ड मैनर में ट्रेनिंग दी जा सकती है विद क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किलिंग दैट इज प्रोवाइडेड. नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम. So this is a scheme by the Board of Apprentice Training and Practical, Ministry of Human Resource Development. Now this is Ministry of Education. अब इसको replace कर दिया गया. This is now the Ministry of Education. So providing skill training, fresh graduates, diploma holders and +2 के जो vocational training है वो यहाँ पे National Apprentice Training Scheme के through दी जाएंगी. Now, importance of infrastructure in the rural development, this is again very significant because until unless we have the good infrastructure and amenities to be provided, यहाँ पे फिर बहुत हद तक holistic development नहीं हो पाएगी. So this is a time that we should focus on the infrastructure of rural development and improve the economic and social life of the people in the rural areas. और improvement ये हो सकती है कि जो government की efforts है वहाँ पे पॉवर्टी को कम किया जाना चाहिए. क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड एंड इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस मेजर एंड माइनर स्कीम प्रोग्राम रिलेटेड टू दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट द रूरल रोड्स इन इंडिया, अगर बात की जाए रोड्स की, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट. यहाँ की टू इकोनॉमिक, रूरल इकोनॉमी की बात करें, रूरल हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, दैट हैज़ टू बी कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड ऑन December 25th, 2020, basically in 2000 the government has launched Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. This was a successful scheme by the government of India that connected the unconnected inhabitation in the India. And it is a 100% center sponsored scheme, CCS scheme की category में आती है ये, that covers only rural area, urban roads and excluded from the purview of this program. Urban roads जो हैं वो इससे अलग थे, सिर्फ रूरल एरिया में फोकस किया गया ताकि वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से डेवलप की जा सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोड्स इन रूरल इंडिया. एंड एनर्जी की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. So this was launched in 2015 and it's aimed to strengthen and augment the sub-transmission and distribution of rural India. Rural electrification को लेकर के अंडर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में इसको प्लान किया गया था, राइट, अंडर 12 and 13 प्लान. Now LPG connections, स्वच्छ भारत बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन. This is for the better fuel and better health. So the union government has also they have the welfare scheme called प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY. इसको 2016 में लॉन्च की गई थी ताकि एक सेफ और क्लीन कुकिंग एनर्जी प्रोवाइड की जा सके फॉर द पुअर हाउस होल्ड. एंड दे वुड बी प्रोवाइडिंग 5 to 8 करोड़ LPG कनेक्शंस टू द पुअर वुमेन. बट स्टिल इफ यू सी द प्रॉब्लम, अगर आप किस माइनिंग एरिया की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पे अभी भी लोग दे आर यूजिंग द कोल एंड अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज देयर इन द सिटी, राइट. सो दिस थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको एक्चुअल बेनिफिट मिले और वो उसका पूरा फायदा ले सके, राइट. सो दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. नाउ प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017. सो फ्री इलेक्ट्रिफिकेशन कनेक्शंस. और उसके बाद PM कुसुम है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव थी टू स्ट्रेंथन द फार्मर इनकम, प्रोवाइडिंग अ रिलायबल इरिगेशन फार्म नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन डीजल एंड केरोसिन ऑयल्स. एंड इट इज ऑल्सो प्रपोज टू एक्सपैंड द स्कीम टू प्रोवाइड 20 lakh फार्मर फॉर सेटिंग अप अ स्टैंड ऑन सोलर पम्प्स, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द PM कुसुम.
नाउ सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो अफोर्डेबल स्कीम्स है 2022 के लिए सभी लोगों को एक अफोर्डेबल स्कीम, अफोर्डेबल होम प्रोवाइड की जाए. पक्का हाउस ऑल्सो नोन एज पक्का हाउस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल होमलेस इन द कच्चा एंड डाइप्लेक्टेड हाउसेस. ना वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें, जल जीवन मिशन है जिसका पूरा टैगलाइन है हर घर जल. सो दिस मिशन एम टू प्रोवाइड पाइपलाइन वाटर टू ऑल हाउस होल्ड, और ये 2024 तक की टारगेट रखी गई है. Now this include approach of water including incentive information, educations and community are the key components. स्वच्छ भारत मिशन is aim to ensure कि जो open defecation free behavior है उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आदमी खास करके SBMG है जो ग्रामीण है उसको कंट्रोल कर सके और ODF प्लस की जो टारगेट है उसको अचीव कर सके. राइट, ऑन द पॉजिटिव नोट. सो वी हैव डिस्कस दिस एज वेल इन द बिगिनिंग ऑफ द video. So Swachh Bharat mission is again very important. Now livestock key for doubling the farm income. किस तरह से जो livestock है वो फार्मर के इनकम को डबल करने में बहुत हद तक मदद कर सकती है. So this is an article. Now animal husbandry has been an integral part of Indian agriculture system since ancient time. और जो livelihood की अगर बात करें तो 2/3 of ऐसे populations हैं जो इस पे dependent है. And livestock sector has a huge potential in investment and sustainability. Although the sector has only 5% share in the total agriculture investment. तो out of total investment की अगर बात करें तो सिर्फ 5% जो है वो livestock sector से आती है. And India investment sector is one of the largest in the world. Right? Now recent initiatives की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाई है. सो दिस इज बाय द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इमर्जिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को नाम कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी. सो दिस इज अ न्यू डिपार्टमेंट दैट हैज कम अप. और जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इनिशिएट किया था एक फ्लैगशिप प्रोग्राम where he was a vision, he has envisaged a vision for doubling the farm income by 2022. But because of the COVID-19, this is not possible. This would be delayed by 2024. And the strategy recommended by the Niti Aayog in 2018 is to identify the 7 sources of doubling farm income and including the improvement of livestock productivity. Now challenges in the livestock sectors, क्या क्या किस तरह के challenges है. First is availability of pedigree bulls and indigenous cow. Second is जो artificial insemination की जो services हैं वो नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं रूरल और हिली एरियाज में. Diversion of animal feed into the fodder ingredients. Poor policies of investment in the livestock sectors. Low milk price with increased feed cost. Non-availability of cold storage facility in the rural area or inadequate availability of credit. Poor access to organized market. So these are some of the challenges that are faced in the livestock sectors. क्या क्या future roadmap हो सकते हैं? The first roadmap would be enhancing the unit production of milk, meat and egg, availability of affordable quality and feed fodder through years, effective healthcare coverage provide की जाए, vaccinations दिए जाए, integrated farm system हो, extensive establishment of biogas, commercial organic farming system, integration of एनिमल हस्बेंड्री विद फिशरीज. उसके अलावा स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉपरेशन यूनिट्स एंड ईज ऑफ डूइंग द प्रॉपर वैल्यू एनिमल मार्केटिंग. ये जितने भी फ्यूचर रोड मैप मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यू कैन राइट डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, एंड इनकरेजिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसेंटिव फार्मर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, encouraging the rearing of indigenous cow, exclusion of livestock related to scheme run by the state government, and attraction of youth and women in the animal husbandry enterprises और कोई नई entrepreneurship हो, even startups हो. So these would be the future roadmap for the livestock sectors. Now, if you're new to our channel, we have a daily topic-wise news analysis where I used to cover the news from Hindu and Indian Express. So this is a comprehensive news analysis where you save a lot of time and the same time can be devoted in studying the static paper. So you can watch this. This is the 30 minutes video which covers the entire news of the day comprehensively, right? And if you have still not subscribed to Aptitude Plus Academy for Civil Services, do subscribe the channel. So you'll get a more informative videos, compilations, everything is there on the website. You can check the playlist sections. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.